میرا نام نائلہ ہے. میرا ایک ہی بھائی تھا اور میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی. میری 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھی جن کی شادی ہو چکی تھی اور اب بھائی کی شادی ہو رہی تھی جس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی تھی، کیونکہ جب سے بہنوں کی شادی ہوئی تھی میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی اور اب بھابھی کے آ جانے سے میرا دل لگ جانا تھا. یہی تصور مجھے خوش کرنے کے لیے کافی تھا. میں نے بھائی کی شادی کے ہر فنکشن پر بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوائی تھیں، لیکن جو کچھ رخصتی کے بعد میری آنکھوں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. بھابھی دلہن بنی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی جب سب مہمان جا چکے تھے. مجھے لگا امی مجھے کہیں گی کہ تم اپنی بھابھی کو اس کے کمرے میں چھوڑاؤ، لیکن امی نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے ابا نے بھائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا. میرا بھائی جو اپنی خوبصورت سی دلہن دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ابا کی پکار پر خاموشی سے ان کے کمرے میں چلا گیا. میں بھابھی کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی. وہ بھی بہت خوش مزاج سی لگ رہی تھی. مجھے میری تعلیم کے بارے میں سوال و جواب کرنے لگی. میں اس وقت 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی. میں بھابھی سے اپنی دوستوں کا ذکر کرنے لگی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن ان کی نظریں بار بار ابا کے کمرے کے بند دروازے پر جا کر ٹک جاتی. امی بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی، بس میں ہی بھابھی کے پاس بیٹھی تھی. مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ امی اتنی جلدی کیوں سونے چلی گئی تھی. حالانکہ امی شادی پر بہت خوش تھی، لیکن جب سے رخصتی کروا کر بھابھی کو گھر لائی تھی ان کا موڈ مجھے بہت خراب لگ رہا تھا. اسی لیے آتے ہی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کو گھر آتے ہوا کیا ہے. بھابھی بھی کچھ چپ چپ سی تھی. میری شادی شدہ بہنیں بھی خراب موڈ کے ساتھ ہال سے ہی واپس لوٹ گئی تھی، گھر بھی نہیں آئی تھی کہ دلہن کا اچھا استقبال کیا جاتا. آدھے گھنٹے بعد سامنے کمرے کا دروازہ کھلا. بھائی بڑی سنجیدگی سے کمرے سے باہر آئے تھے اور مجھے بھابھی کے پاس بیٹھے دیکھ کر کہنے لگے، تم سونے نہیں گئی اپنے کمرے میں؟ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ. مجھے بھائی کی بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کس روکھے لہجے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بات بھائی نے بھابھی سے کہی وہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. کہنے لگے، رابعہ تم ابا کے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں. میں جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی میرے قدم وہیں رک گئے. میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا. بھابھی بھی بھائی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. شادی کی پہلی رات کو بھلا کون سی دلہن یوں سجی سنوری سسر کے کمرے میں جاتی ہے. ایک بات اور کہ میری والدہ اور والد الگ الگ کمروں میں سوتے تھے. اس سے پہلے کہ میں دیکھتی کہ بھابھی کیا جواب دیتی ہیں، بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا. میں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، لیکن میں اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکتی. میں کمرے میں آ تو گئی تھی لیکن میرا پورا دھیان باہر تھا. میں پہلے تو اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی کہ آخر ابا نے بھابھی کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا تھا. میں کچھ دیر تو اپنے کمرے میں ہی بے چین سی رہی، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے تبدیل کر کے اپنے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا. جو کچھ مجھے سامنے نظر آیا وہ مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا. بھائی باہر نہیں تھے اور بھابھی ابا کے کمرے سے نکلی تھیں اور بے تحاشا رو رہی تھیں. تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھا. روتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. نہ جانے کیوں لیکن میرا دل بجھ سا گیا تھا. میری بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم سی بھی تھی. پتہ نہیں کیا وجہ تھی، کیوں رو رہی تھی. نہ جانے کیوں لیکن مجھے رات بھر چین سے نیند نہیں آئی. تو مشکل فجر کے بعد میں سوئی. میری آنکھ ایک شور سے کھلی تھی. میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. مجھے لگا امی کسی پر چلا رہی ہیں. میں حیران تھی کہ صبح صبح امی کیوں چیخ رہی ہیں. میں نے جھٹ سے لحاف اتار کر سائیڈ پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ سی رہ گئی. امی میری نئی نویلی بھابھی پر چلا رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ مجھے زبان چلانے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں. خبردار جو تم نے آج کے بعد مجھے کسی بات کا جواب دیا ہو. چلو اور جا کے کچن میں ناشتہ بناؤ. میں اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر حیران پریشان تھی. میری شادی شدہ دونوں بہنیں ابھی اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھیں. مجھے حیرت سی ہو رہی تھی کہ ایک دن کی دلہن کے ساتھ میری ماں ایسا بھی رویہ کیسے اختیار کر سکتی ہیں. میں تیزی سے آگے بڑھی اور امی سے کہا کہ ناشتہ میں بنا دیتی ہوں. بھابھی کی ابھی رات کو ہی تو شادی ہوئی ہے. لیکن میری بات پر امی ہتھے سے اکھڑ گئی. کہنے لگی، خبردار جو تم نے اس لڑکی کی حمایت کی تو آج کے بعد گھر کا سارا کام یہی کرے گی. میری بھابھی کچن میں چلی گئی. میری بہنیں کہنے لگی، امی ہماری تو ہمارے سسرال میں ناک کٹ گئی ہے کہ ایک اکلوتا بھائی جس کی شادی اتنے چاؤ سے کی اور اس کے سسرال والوں نے ہمیں سونے کی کوئی چیز نہیں پہنائی. اونچی دکان، پھیکا پکوان. ہاں، میری بہن نے نفرت سے کہا تو میں اب سمجھی
کہ میری माँ बहनों का किस बात पर मुंह सूजा हुआ था कि मेरी भाभी जहेज इतना नहीं लाई थी। मुझे बहनों की सोच पर अफसोस हो रहा था कि जब अम्मी भी शुरू हो गई। मेरा एक ही बेटा था, कितने पैसे लग गए थे इसकी शादी पर। मुझे तो लगा था अमीर लोग हैं, गाड़ी तो जरूर मेरे बेटे को जहेज में मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसे कंजूस लोग कि बस अपनी खूबसूरत बला ही खाली हाथ हमारे पल्ले बांध दी। मेरी भाभी उस वक्त आम से हुलिया में किचन में नाश्ता बना रही थी, कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी, और मेरी माँ बहनों को जहेज ना मिलने का कलक सताए जा रहा था। मेरा जी चाहा कि भाई के कमरे में जाऊं और उनसे कहूं कि अपनी माँ बहनों का रवैया अपनी एक दिन की दुल्हन के साथ जाकर देख लो, जिन बहनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुमने खुद शादी देर से की। मेरा भाई सबसे बड़ा था और था भी घर वालों का निहायत ही फरमाबरदार, इसीलिए दोनों बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत जहेज दिया था, और जब उसकी अपनी शादी हुई थी तो उन्हें तवक्का के मुताबिक कुछ ना मिला था। भाई जब कमरे से बाहर निकले तो हशाश बशाश थे। अपनी नई दुल्हन को किचन में काम करता देखकर भी वो कुछ नहीं बोले थे। अम्मी से बहुत डरते थे। मैं जानती थी कि मेरा भाई मेरी वालिदा का फरमाबरदार था, इसीलिए मैं जानती थी कि अम्मी की जैसी ही सोच होगी भाई की भी वैसी होगी। अभी मेरा ये अफसोस ही कम न हुआ था कि अब्बा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब्बा को देखकर मुझे याद आने लगा कि भाभी दुल्हन बने रात को अब्बा के कमरे से रोती हुई बाहर निकली थी। मुझे लगा शायद अब्बा ने भी कम जहेज मिलने पर ही भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब्बा जब नाश्ते की मेज पर बैठे तो मेरी भाभी की मेरे अब्बा को देखकर रंगत उड़ सी गई। वो हद दर्जा घबराई हुई थी। मैं भाभी के चेहरे की बदहवासी देखकर हैरान थी, और अपने अब्बा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। फिर तो सबका यही रवैया भाभी के साथ शुरू हो गया। वो हर वक्त डरी सहमी सी रहने लगी। सारा दिन वो काम करती रहती, और रात को जब भाई घर आते तो अब्बा के कमरे में चले जाते, और जब वो कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते कि वो अब्बा के कमरे में चली जाए। वो बेचारी परेशान हाल सी होकर अब्बा के कमरे में जाती थी, लेकिन जब वो कमरे से वापस आती तो बुरी तरह से हाँप रही होती, पसीने से शराबोर होती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे उनकी ऐसी आवाजें उनके कमरे से सुनाई देती जैसे वो उल्टियां कर रही हों। उनके चेहरे की नागवारी से भी यही लगता जैसे वो कोई बहुत बुरा फेल करके आई थी। मुझे ये बात जिस शक्को शुबात में डालती, मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर मलामत करने लगता। पूरा दिन मेरी माँ मेरी भाभी का जीना दो भर किए रखती, और रात को वो 2-2 घंटे अब्बा के कमरे में गुजार कर वापस आती थी, और आते ही अपने कमरे में चली जाती और नहा कर वापस आती। मुझे इस बात की हैरत थी कि अब्बा उन्हें क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं, और भाई भाभी को क्यों इशारे से अब्बा के कमरे में भेजते हैं, और मेरी माँ को भी कोई एतराज नहीं होता। एक बार मेरी भाभी किचन में बर्तन धो रही थी। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी की फिक्र सताने लगी। उनकी आंखों में चमकते हर वक्त के आंसू मुझे बहुत दुख देते थे कि क्या जहेज ना देना औरत का इतना बड़ा ऐब है। मैंने घड़ी देखी, रात का 1 बज रहा था। जानती थी कि सब सो चुके होंगे, इसीलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर दूं। लेकिन जो कुछ मैंने किचन में देखा, मैं दंग सी रह गई। मेरी भाभी के हाथ में मोबाइल था और किसी के साथ फोन पर बातें कर रही थी। वो मोबाइल शायद मेरे भाई का था। भाई इस वक्त सो चुके होते थे। हो सकता है वो चोरी छुपे से वो मोबाइल लेकर आती हो और अपने घर वालों से बातें करती हो। कौन हो सकता है वो जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, रो भी रही थी, क्योंकि मेरी भाभी अपने चचा के घर रहती थी। उनके माँ बाप एक हादसाती मौत मर चुके थे, और चचा ने रिश्ता तो भाभी का यही कहकर तय किया था कि वो उनकी सगी बेटी जैसी है, लेकिन शादी पर भाभी को कुछ भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ और बाकी घर वालों का रवैया उनके साथ बहुत बुरा था। फिर एक बार भाभी ने मुझे बताया था कि उनकी चची उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखती थी, उन पर बहुत जुल्म करती थी। चची की अपनी 3 बेटियां थी, इसीलिए वो उन्हें भला क्यों जहेज देते। जो कुछ भी मेरी भाभी के वालिद का हिस्सा था वो सब कुछ उनके चचा अपने कब्जे में कर चुके थे। वो बेचारी तो वहां से भी जुल्म ही सहती आई थी, लेकिन वो इस वक्त किससे बात कर सकती थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद उनके चचा चची ने तो पलट कर नहीं देखा था कि वो किस हाल में है। फिर मुझे ये भी लग रहा था कि जिससे वो बात कर रही है वो कोई मर्द है। मेरी भाभी के साथ यहाँ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। मेरा दिल उनके बारे में सोच सोच कर कटता रहता था, लेकिन जो बात मुझे शक में डाल रही थी
वो ये थी कि मेरी भाभी इस वक्त जिससे बात कर रही हैं वो कोई मर्द था। मेरी भाभी उसे कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम नहीं जानते ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं, और वो शख्स जो मेरा ससुर है वो किस कदर घटिया इंसान है। काश कि वो जुल्म जो मेरे साथ करता है उसकी बेटी भी वो सब सहे तो उसे पता चले। ये बात सुनकर मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। न जाने वो शख्स कौन था जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, और अब्बा ऐसा क्या करते थे भाभी के साथ। मुझे अब्बा की हरकत खुद भी नापसंद थी, लेकिन जिस तरह से मेरी भाभी रोते सिसकते बद्दुआ दे रही थी, मेरी रूह तक लरस गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब्बा ये क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वो भाभी के साथ कर रहे हैं अगर मेरी बहनों के ससुर भी उनके साथ करें तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे। और मेरा भाई क्या वो बिल्कुल बेगैरत हो चुका है जो खुद अपनी बीवी को अपने बाप के कमरे में भेजता है। हालांकि मेरा बाप मेरी बहनों से कहता था कि कोई जरूरत नहीं अपने ससुर की खिदमत करने की, ना ही उसके कमरे में अकेले जाने की। मेरी दोनों बहनें बहुत तेज मिजाज की थी, अपने ससुराल वालों को नचा के रखा हुआ था। शौहर भी उनके काबू में थे, और जब यहाँ आती तो भाभी की शामत लाए रखती थी। हर वक्त उन्हें जहेज ना लाने के ताने देती रहती थी। वालदा भी किसी से कम ना थी, पूरा दिन मेरी भाभी के पीछे पड़ी रहती थी। दिन में 1 घंटा भी भाभी को आराम के लिए नहीं मिलता था। मैं उस वक्त भाभी की मदद कर देती थी जब अम्मी दोपहर को सो रही होती थी। वो मुझसे कभी कभी अपने दिल की बात भी कर लेती थी, लेकिन जब भी मैं उनसे ये पूछती कि अब्बा उन्हें कमरे में बुलाकर क्या कहते हैं तो उनकी रंगत उड़ जाती थी। वो एकदम ही फक रंग के साथ नफी में सर हिलाने लगती। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब ना था। मेरी भाभी मुझसे भी बात करते हुए घबराती थी। एक दिन जब भाभी मेरे अब्बा के कमरे में गई तो मैंने अम्मी से पूछा कि अब्बा भाभी को रोज अपने कमरे में क्यों बुलाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगी। कहती, मुंह बंद रखा करो अपना, खबरदार जो दोबारा कोई भी ऐसा सवाल मुझसे पूछा भी तो। मुझे अम्मी पर भी हैरत होती थी कि वो क्यों कुछ नहीं बताती। मैं अपनी भाभी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार मैंने सोच ही लिया कि मैं भी देखूंगी कि आखिर अब्बा कमरे में भाभी के साथ करते क्या हैं। मेरा भाई मेरे बाप से बहुत डरता था, इसीलिए जो बात अम्मी या अब्बू कह देते वो कभी उसके खिलाफ नहीं चलता था। एक दिन जब भाभी कमरे में गई, कुछ देर बाद मैं भी अब्बा के कमरे में जाने के बहाने से उठ गई कि जाकर देखूं, तो मेरी अम्मा ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगी, खबरदार जो तुम कमरे में गई भी तो। मैंने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे अब्बा से काम है। अम्मी ने कहा कि जब तक तुम्हारी भाभी कमरे में है तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो जाओ अपने कमरे में। एक रात तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात को किचन में जाने लगी, मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं लाउंज में से होती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी, सामने लाउंज का दरवाजा खुला था। मैं ये सोचने लगी कि रात के पहर दरवाजा किसने खोला है। मैं जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी सहन में से होते हुए छत की तरफ जा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि इस वक्त वो छत पर क्या करने जा रही हैं। मैं भी उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंची मैंने छुप कर देखा तो मेरी भाभी एक नौजवान के गले लगकर रो रही थी। ये देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। वो उस शख्स से भी यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कौन था वो शख्स? भाभी का क्या लगता था? कोई आशिक? मैं वापस लौट आई, मुझ पर घबराहट सी तारी थी। ये सब क्या हो रहा था? एक तरफ तो मेरी भाभी मजलूम बनी हुई थी और दूसरी तरफ ये कौन सा रूप था उनका जो मैं देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि सबको जगाकर भाभी की असलियत बता दूं। मैं जैसे ही लाउंज से अंदर आई कि अपने कमरे में वापस जा सकूं, तो लाउंज के सामने मेरा भाई खड़ा था। भाई को देखकर मेरे रहे सहे औसान भी खता हो गए। वो मुझसे कहने लगा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी। मैं तो परेशान सी हो गई कि क्या जवाब दूं। मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, मुझे घबराहट हो रही थी इसीलिए ताज़ा हवा के लिए बाहर आ गई थी। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? पूरे घर में नजर नहीं आ रही। ये सुनकर तो मैं और भी घबरा गई कि क्या कहूँ और क्या नहीं। मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि भाभी भी आ गई। भाई को देखकर तो उसके भी होश उड़ गए, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया। मैंने कहा, मैं और भाभी दोनों ही बाहर सहन में बैठे थे। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ दंग सी रह गई। कहने लगी कि हाँ, मैं इसके साथ ही सहन में थी। मेरा भाई मुतमईन सा हो गया। उस वक्त तो मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले रोज मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि मैंने उसे बचा लिया।
मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो छत पर क्यों गई थी और जो शख्स छत पर था वो कौन था। कहने लगी वो मेरा भाई है जिसे चचा ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था ताकि बड़ा होकर कहीं अपना हिस्सा ही ना मांग ले। मेरा भाई कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था, इसीलिए मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो खुद को एस्टैब्लिश कर चुका है और बहुत जल्द मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा कि आपने पहले नहीं बताया कि आपका कोई भाई भी है। वो कहने लगी कि मैं क्या बताती, इस घर में आते ही मुझ पर जुल्म और सितम शुरू हो गया था। मुझे तो लगा था कि मेरी आजमाइश शादी के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो जबरे मुसलसल है। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगी? कहने लगी तुम्हारा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता, मैं ऐसे शख्स के साथ क्या जिंदगी गुजारूं? उनकी बात तो दुरुस्त थी। फिर कहने लगी तुम्हारे वालिद भी अच्छे इंसान नहीं है, मैं वो सब नहीं कर सकती। मैंने कहा अब्बा आपसे क्या करवाते हैं? मेरी बात पर वो कहने लगी कि किसी दिन खुद जाकर देख लेना। मैंने भाभी से कहा कि आज मैं आपके कपड़े पहनकर अब्बा के कमरे में जाऊंगी, आप मेरे कमरे में खुद को बंद कर लेना। वो मेरी बात मान गई। रात को भाभी के कपड़े पहनकर मैं उनके कमरे में चली गई, लेकिन मैंने घूंघट में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे देखकर मेरे अब्बा यही समझे कि मैं भाभी हूँ। फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं काला इल्म सीख रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये जिंदा मुर्गियां हलाल करके दो, मुझे इनका खून गिलास में डाल के दो। ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। मेरा बाप कौन सा इल्म सीख रहा था? अब्बा ने 3 जिंदा मुर्गियां निकाल कर कहा कि इसे काट कर इसका खून गिलास में डाल के दो, मैं वो खून पीऊंगा। फिर वो बोले कि आज आखिरी अमल है, उसके बाद जो चाहो जिन्नात से करवा सकता हूँ। ये कहकर वो कुछ उल्टा सीधा पढ़ने लगे, लेकिन मैंने मुर्गियों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बाप कोई ऐसा अमल सीखे। शायद भाभी इसी वजह से घबराती थी, उल्टियां करती थी, नहाती थी। मुझे भी ये सब सोचकर घिन आ रही थी। मैं ये अमल कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने जब अपना दुपट्टा ऊपर किया तो अब्बा देखकर दंग रह गया। मैंने कहा अब्बा मैं आपको ये नहीं करने दूंगी, ये गलत अमल है। मेरे वालिद मुझे देखकर हैरत ज़दा रह गए। कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं भाभी को अपने कमरे में जबरदस्ती बंद करके खुद जानबूझकर यहाँ आई थी ताकि आपको एक गलत फेल से रोक सकूं। मैंने कहा अब्बा ये सख्त गुनाह है, ऐसे गलत कलमात को पढ़कर आप अजाब के मुर्तकिब हो गए हैं। मैं रो रो कर उन्हें समझाने लगी तो वो खामोश हो गए। कहने लगे मैं ये इसलिए सीखना चाहता था ताकि मैं दौलत कमा सकूं। मेरे समझाने का नतीजा ये निकला कि अब्बा इस काम से पीछे हट गए। फिर मैंने अपनी भाभी से कहा कि वो अपने भाई की शादी मुझसे करवा दें। मैं अपने घर वालों से यही कहूंगी कि अगर आपने भाभी पर जुल्म किया तो उसका बदला आपका भाई मुझसे लेगा। भाभी को मेरा मशवरा अच्छा लगा था। इस तरह मेरी शादी अपनी भाभी के भाई से हो गई। मेरे घर वालों का रवैया भी भाभी से ठीक हो गया। मेरी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने से 2 घर बस चुके थे। मैंने अपनी भाभी का घर बचा लिया था और उन्हें जुल्म से निजात भी मिल गई थी।